But I somehow want to step into politics somewhere in the future. Okay? It's a tough terrain, but let's see what happens. मेरी एस्पिरेशन तो है. तो वो किताब मेरा एक मैनिफेस्टो है पाकिस्तान के लिए कि 100 चीज़ें पाकिस्तान को करनी है. पाकिस्तान विल टर्न 100 in 2047. तो अगले 24 साल हैं, 23-24 साल हैं हमारे पास, 22 साल हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान को, एक्चुअली 21 साल हैं, नाउ, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को टर्न अराउंड करना है. तो मैंने वो 100 चीज़ें निकाली हैं जिसमें पाकिस्तान को वर्कआउट करना पड़ेगा. और उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने फ़िलासफ़ी स्कूल्स की बात की, लेकिन उसमें सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. पाकिस्तान नीड्स अ मेजर नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट at every level, top to bottom. The thought process that this nation follows or advocates, it hasn't worked. So it needs a complete overhaul. तो उसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि कौम को सिर्फ सोचना है. We just don't think. Pakistanis don't think. Only if we start thinking, that's the bare minimum I want people to do. The youth, the elderly, कि सोचो तो सही कि कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे रीज़न क्या है, और आपका जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उसके पीछे रीज़न क्या है, आपके जो बाप दादा ने फॉलो किया उसके पीछे रीज़न क्या थी. एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन पर्सनल आइडेंटिटी. देयर इज नो हार्म इन फाइंडिंग योर सेल्फ. विद दैट थॉट आई वॉन्ट टू एंड माई टॉक विद अ शेर फ्रॉम इकबाल साहब. 2 शेर सुनाता हूं अगर मुझे याद रहे तो, कि नंबर 1, खबर नहीं क्या है दाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी. खबर नहीं क्या नाम है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी. अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना. और दूसरा, टू मोटिवेट यू पीपल टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज के उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है. उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है. Thank you so much. I would love to answer your questions if you have any. Oh, actually, that was the Plato's allegory of the cave was the story. That was the story. Ji sir. Ji. You want a mic? In a pharmaceutical company, Japanese pharmaceutical company for almost 40 years. And we were taught about this Ikigai. And I have already read about the Ikigai in detail. There is a wonderful book about this Ikigai. The question, first of all, I must appreciate your presentation. It's an excellent presentation, and I must congratulate the organizers, especially Divani Sahab and Matum Sahab, for arranging such beautiful program here. And you can see the audience. I'm also a Toastmaster, a good public speaker, Fantastic. a storyteller. Now, the issue with us is we are very good at individual level, but when it comes for something for our future, Yeah. then we are divided. Yeah. We are divided, and we don't use our mental approach, and we follow others what they say. So how to change this paradigm shift? And we became a nation, because you talk about the Singapore, you talk about the Japan, they have one nation, and the issue with us is we are divided. We are divided. So what is the therapy or the recipe that we should adopt, that we should become one nation? Thank you. Good question. You want me to give a pragmatic? What does the house vote for? Pragmatic, sir. The house says because there will be a lot of questions, so we'll have to speed this up.
You can take it as a bad news, but for me it's not a bad news. We can never become a nation. Why? इसमें स्ट्रक्चरल, इसकी जो कॉन्स्टिलेशन है ना पाकिस्तान, इसको कहते हैं हम लोग एक कसीरुल कौमी मुल्क हैं. वी हैव सिंधीज़, पंजाबीज़, बलोच, पख्तून. ये लोग कभी भी एक नेशन नहीं बन सकते हैं. ये गलत अटेम्प्ट है नेशन बनाने की. आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, ये जो कंट्रीज़ हैं लाइक कोरियंस, जापानीज, दे आर वेरी होमोजीनियस पीपल. they eat similar things, they dress similarly, they talk similarly. उनके हेयर स्टाइल भी एक जैसे हैं, सब चीज़ें एक जैसे हैं, दिखते भी एक जैसे हैं. हम पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी मुल्क है. हाँ, ये बात सही है कि अंडर द टू नेशन थ्योरी वी यूनाइटेड अंडर द फ्लैग ऑफ इस्लाम. So religion somehow consolidates us. But the ideology that Pakistan has followed has been an absolute failure. Total failure है. तो अब इसका pragmatic answer ये है कि पाकिस्तान, ये मैंने अपने बुक में भी प्रपोज किया है कि Pakistan needs to have more provinces and Pakistan needs to be more decentralized. पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड को देख लें, कितने वहाँ पे काउंटीज़ हैं. मेरे ख्याल में मोर देन 20 है. इंडिया हैज़ मेड मोर देन अ डजन प्रोविंसेस. वी हैवंट बीन एबल टू मेक अ सिंगल वन बिकॉज वी आर पेट्रिफाइड एंड एप्रीहेंसिव कि अगर पाकिस्तान में मजीद प्रोविंसेस बना दिए तो पता नहीं क्या होगा. मेक द कंट्री, डिवॉल्व द पावर, मेक इट डिसेंट्रलाइज्ड. लोकल लेवल पे पावर को डिवॉल्व करें और एक सिंगल, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही आइडियोलॉजी के पीछे. फॉर मी, अगर आप पाकिस्तान को इस्लाम की आइडियोलॉजी के पीछे रखेंगे तो मैंने तो, इट्स अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, आर्टिकल 41 एंड 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज कि एक कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता. मुझे एक बात बताएं, आप डॉक्टर हैं मैडम, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं. समझे आप गायनोकोलॉजिस्ट ही हैं और मुझे अपने बच्चे की पैदाइश करनी है, ठीक है? तो मैं आपसे क्या आके ये पूछूंगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, या फिर मैं ये सोचूंगा कि आप अपने फील्ड की बेस्ट प्रोफेशनल हैं कि नहीं? सर आप यही पूछेंगे कि मेरा प्रोफेशन. इट्स ऑफ नो कंसर्न टू मी वेदर यू आर अ मुस्लिम और अ हिंदू और सो इफ समवन, चीफ जस्टिस की मिसाल है जो आए हैं. या if someone, if a Hindu or a Christian or any other follower of religion has fantastic managerial skills, is a great politician, has great public following, can solve the problems of Pakistan, he is a good diplomat, good negotiator, great at foreign policy, great at local policy, तो why can't he be given the opportunity? So ये हम लोग सर nationhood, it's a very hard thing to do because people cannot think alike. Yes, what I believe is let's decentralize the power and let the people of Pakistan through their intellect drive the country. अभी हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इज़ व्हाट 62-65% और इवन लोअर देन दैट. तो वी कैन नॉट इवन थिंक फॉर आवरसेल्व्स. सो अब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है. जो नारेबाजी करता है वो आगे निकल जाता है. मैं आपको बताता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इंडोनेशिया सुकार्नो के पास गया, आई थिंक ये बेनज़ीर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ द ईस्ट में. सो सुकार्नो ने कहा कि तुम जिस मुल्क से बिलोंग करते हो ना, एक थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्क है, ऐसे मुल्कों को लोगों को विजन नहीं दो, नारेबाजी दो इनको. एंड ही गेव द नारे, रोटी कपड़ा मकान, 50 years द नेशन इज यूनाइटेड अंडर रोटी कपड़ा मकान. सो वी वांट टू गिव, आई पर्सनली वांट टू गिव अ न्यू नैरेटिव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली एट इंडिविजुअल लेवल, कि अगर हम इंडिविजुअली ही अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दें, अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दें. हमारे, देयर इज नॉट अ सिंगल स्कॉलर वी हैव प्रोड्यूस्ड. एक प्रोड्यूस किया था, वी लेबल हिम एज अ नॉन मुस्लिम एंड वी डू नॉट ओन हिम. सो फॉर मी, एट माई, इफ यू आस्क द बॉटम लाइन, द आंसर इज आई वांट टू वर्क ऑन पर्सनल अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल एट इंडिविजुअल लेवल एंड देन स्लोली, इट्स अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस, उनको फिर आप ऊपर लेकर आएँ और उनको फिर किसी एक नारे या किसी एक कॉमन कॉज के अंडर यूनाइट करें. But if you're thinking कि in the existing circumstances this will happen, I think it's quite impossible to do that. हमें सोचना है जी हर इंडिविजुअल को सोचना है. जी जी.
तो सर सोच तालीम के साथ आएगी तो, और आपने ये भी कहा कि मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आऊँगा जी। तो क्या आप पॉलिटिक्स में आने के बाद आप हमारे वजीर तालीम होके क्या घर घर तालीम आम करेंगे? गुड क्वेश्चन, आई हैव गुड क्वेश्चन मैडम। अच्छा, मैंने अपनी किताब में, क्योंकि 100 में ये भी टॉपिक कवर्ड है, तालीम पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, तालीमी निसाब प्रॉब्लम है। तालीमी निसाब प्रॉब्लम है। आपको बताऊं, केमिस्ट्री की बुक में ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तो वो बाहुक्म इलाही बनेगा पानी, अदरवाइज नहीं बनेगा। यू वांट अ प्रूफ? मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज की किताब देखें, भरी पड़ी है। सो द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज नॉट हाउ परवेसिव एजुकेशन इज। हर जगह आपको स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द निसाब, द सिलेबस दैट वी टीच टू आवर किड्स, इट्स एब्सोल्युटली प्रिपोस्टरस। सर वो भी आप चेंज करेंगे? और व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? मैंने अभी मैं लास्ट 2 महीने पहले जा रहा था इस्लामाबाद, तो कलर कहार, यू नो देयर आर दोज यूरिका मोमेंट्स इन योर लाइफ। तो कलर कहार पे मुझे एक आइडिया आया मेरी तीसरी किताब का। आई डोंट नो उसको कितनी पजीराई मिलेगी, बट आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। आई वांट टू मेक फिलोसफी बुक्स फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। हम क्यों खौफ खाते हैं? वाई आर वी अफ्रेड टू टीच फिलोसफी टू आवर किड्स? कि अगर कि क्लास 2 के बच्चे को, 3 के बच्चे को, 4 के बच्चे को आप बेसिक आइडिया पिक्टोरियली फिलोसफी पढ़ानी शुरू करें, प्री सोक्रेटिक टाइम से, सोक्रेटिस से, मार्कस ऑरेलियस को पढ़ाएं, हाइडेगर को पढ़ाएं, हेगल, इमैनुअल कांट को पढ़ाएं। व्हाई नॉट? इमैनुअल कांट ने कहा था ना, एंड आई बिलीव इन दैट, इफ द ट्रूथ किल्स देम लेट देम डाई, बट लेट द पीपल, लेट द चिल्ड्रन नो द ट्रूथ। हमें ये, एंड वी आर सो इनसिक्योर कि अगर उन्होंने फलसफा पढ़ लिया तो वो दीन से भटक जाएंगे। तो फिर आपकी तो आइडियोलॉजी, उसमें सोच में ताकत ही नहीं है अगर वो इन चीज़ों से भटकने लगे। ये सब आपको चेंज करना है। सो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? आई हैव गिवन अ कंप्लीट प्लान, नॉट ओनली सुपरफिशियली कि ये करना, मुझे करना क्या है, उसको ग्रास रूट में मैंने किताब के अंदर बताया है कि अगर एजुकेशन चेंज करनी है तो निसाब कैसे चेंज होगा। मैंने उसमें एक चैप्टर है नेशनल फोरसाइट काउंसिल। पाकिस्तान में एक नेशनल फोरसाइट काउंसिल हो जो अगले 10, उसका काम ही हो कि अगले 10 साल में लोगों के इंटेलेक्ट के ऊपर कैसे काम करना है। नॉट आइडियोलॉजीज बट रीजनिंग, रैशनैलिटी, द पावर टू क्वेश्चन, द पावर टू रीजन एंड स्लोली। और मैं कोरियन एम्बेसी में मेरी पहली जॉब थी एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर, एम्बेसडर के साथ था मैं, कॉन्सल जनरल के साथ। वो मुझे हर वक्त कहते थे, शाहरुख आपका जो 1960 का प्लान है, 5 ईयर प्लान, वी कॉपीड इट, आप ही से लिया था हम लोगों ने, और हम लोग उसको लुक वेयर कोरिया इज टुडे। सो वी आर परहैप्स वेरी गुड प्लानर्स, वी यूज्ड टू बी वेरी गुड प्लानर्स, बट वी डू नॉट एग्जीक्यूट। सो आपके क्वेश्चन का सवाल ये है कि स्कूल्स तो बनाने हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कूल्स में जिस तरह की क्वालिटी ऑफ सिलेबस है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, वो कभी भी बच्चे को वो ग्रो नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। आने वाले बच्चे ही ये चेंज करेंगे। Yes, of course. Someone needs to. I always live my life according to one statement that I was always in search of a person who will change the world until I realized that person was me. So ये important चीज़ें। तो मैं I am personally a very optimistic person, जिसको हिंदी ज़बान में कहते हैं आशावादी। I am a very optimistic person and I believe Pakistan has the potential to grow and I want to serve my country. Why not? I love my country. तो मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ इन विच एवर कैपेसिटी, एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स पे, सोशल फैब्रिक के ऊपर काम करके, इन वट एवर वे आई कैन, एंड आई वुड लव टू वर्क विद प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प मी एग्जीक्यूट दैट प्लान एट ग्राउंड लेवल। ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे cricket team need a cricketer like him, so what he do? He can never be a good cricketer if he doesn't love it. वो बन ही नहीं पाएगा। देखो, अगर आपको किसी चीज़ से प्यार ही नहीं है ना, तो फिर आप उसको कभी भी एक्सेलेंस लेवल पे कर ही नहीं सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 25 करोड़ लोगों में से 11 लोग ऊपर जाते हैं, 11 लोग। तो आपको लव नहीं, मैडनेस चाहिए। इट्स अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ लव। सो इफ ही डजंट लव इट, ही कैन नेवर राइज टू द टॉप। और कोई भी जिंदगी में, नॉट ओनली क्रिकेट, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग मीनिंगफुल लाइफ एंड टेक इट टू द लेवल ऑफ एक्सेलेंस,
आप कभी भी उस काम को अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक आप पागलपन नहीं है आपके अंदर, दीवानगी नहीं है, यू आर नॉट मैड अबाउट इट, ऑब्सेस्ड अबाउट इट. सो फाइंड आउट दैट वन थिंग विच यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट, और फिर सरपट भागें उसके पीछे. टेक इट टू द टी, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके जी. डेवलपमेंट की बात होती है तो पाकिस्तानी कौम को सबसे पहले इल्ज़ाम ये आना शुरू होता है कि जी आप सोचें, आप सोचते नहीं हैं, फलाना धमाका की बेशुमार बातें, और बहुत सी किताबें भी इसी तरह के अंदाज में लिखी हैं. जी जी जी. बात ये हो रही है कि पाकिस्तान से एक मजदूर से लेके एक साइंटिस्ट तक, एक डॉक्टर तक, जैसे ही दुबई की ज़मीन पे कदम रखता है या अमेरिका की ज़मीन पे कदम रखता है या यूरोप की ज़मीन पे कदम रखता है, वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है 24 घंटे के अंदर. जी जी. पाकिस्तानी कौम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पाकिस्तान के फार्मर के साथ प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान के किसी भी बंदे का प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम इज विद द सिस्टम. द सिस्टम इज नॉट लेटिंग अस ग्रो. अगर एक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बात करते हैं कि हम कौम नहीं बन सकते. क्यों नहीं कौम बन सकते? 80% लोगों ने अगर एक बंदे को वोट दिया है, चाहे वो अहमद ही है, चले डेमोक्रेसी तो एक, आपने कहा ना हम इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलेंगे. अब आप क्रिकेट खेलने के ग्राउंड के अंदर फुटबॉल लेके आ गए, नहीं तो हम तो फुटबॉल खेलेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई. तो क्वेश्चन ये है कि हम कौम हैं, अमेरिका भी कौम है, अमेरिका भी कौम है. अमेरिका के अंदर हमसे ज्यादा वहाँ पे जी 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 प्लुरलिज्म है वहाँ जी पे. जी. नस्ल के एतबार से, रिलीजन के एतबार से, माली हैसियत के एतबार से अमेरिका एक कौम है. हम कौम क्यों नहीं है? हम कौम अच्छी भली कौम है. द प्रॉब्लम इज द पीपल आर, द सर्टेन पीपल आर नॉट लेटिंग अस बिकम ए कौम. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है आपने हमें वो कौम बना दिया है कि एक गुब्बारे के अंदर मछलियां छोड़ दी हैं और उस गुब्बारे को आपने समुद्र के ऊपर रख दिया है. अब आप कहते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, आप तरक्की क्यों नहीं करते? अब तरक्की क्यों नहीं? अब गुब्बारे को खोले तो सही, ताकि वो समुद्र के अंदर जाके तरक्की करे. आपने आपने जो आपने देश का दरख्त है, आपने जो खजूर का दरख्त है, आपने गमले में लगा दिया. अब वो पौधा जब बड़ा हो गया तो बड़ी जमीन में डाले ना उसको. आप तो पौधे को बड़ा ही नहीं होने दे रहे तो फल कहाँ से देगा वो? थैंक यू भाई. आप क्यों कर रहे हैं सर? आप जरा थोड़ा सा कमेंट करते हैं मेरी. मैं सर मैं इनको ऑफ कोर्स सर बिल्कुल. The four nations or four provinces, or we can say other nations which are working, which are living in this country, but the basic reason is that they are limited. They must make them limit. So there is a need to provide them ways, the ways from where they used to do their work. Actual the reason is there. अच्छा सर, okay, I understand. All right. I am a rationalist, so I'll give a rational answer. देखें सर, the truth is पाकिस्तान में social upward mobility उस लेवल पे नहीं है जितना अमेरिका में है. एक शख्स एक एवरेज टैलेंट के साथ अमेरिका में ऊपर चला जाता है क्योंकि सोसाइटी उसको ऊपर पुश करती है, लोग उसको ऊपर पुश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उसको ऊपर पुश करती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह की सोशल अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है. राइट, दैट्स द ट्रूथ. अब मुझे एक बात बताएं, दिस इज़ अ रैशनल आंसर नाउ. मेरे पास इस ज़िंदगी में 30 या 40 साल हैं प्रोडक्टिव ईयर्स. पहले 30-35 साल तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप नहीं होता हमारा, 30 साल तक. ऐसे ही है डॉक्टर? हाँ. उसके बाद हमारे पास 30-35 साल हैं. शाहरुख, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि मैं इस विक्टिम माइंडसेट के ऊपर बिलीव नहीं करता. सॉरी सर, आई एम सेइंग दिस, बट आई डू नॉट बिलीव इन द विक्टिम माइंडसेट कि अगर मुझे इस रोड के ऊपर खड्डे मिल रहे हैं तो मैं इस रोड की कंप्लेन करना शुरू कर दूं. कराची में आग लग गई तो मैं गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ब्लेम्ड, but what is my personal contribution towards the upliftment of the society rather than complaining? So I would rather not complain and play my part. That's how I see it. ये बात हम लोग सब जानते हैं, करप्शन है, bureaucracy is corrupt, no social upward mobility, politicians are corrupt to the core. Up two options here. Either we can crib for the next
50 years of our lives sitting in our drawing rooms and say कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, या फिर we take those BB steps. मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट यहीं पे कर लेते हैं. इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस रूम में 200 लोग मौजूद हैं, 100-200 जितने भी लोग मौजूद हैं. हम लोग टंडोवाला यार के 10 बच्चों की 1 साल की या 5 साल की एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं. लेट्स डिसाइड, लेट मी टेक द फर्स्ट स्टेप. 5 बच्चों की मैं करता हूं. आई एम श्योर कि इस रूम में मैं 5 लोग ढूंढ लूंगा जो मुझे मजीद 5 बच्चों की भी स्पॉन्सर करके दे देंगे. तो हमने 10 बच्चों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर दिया इस छोटी सी 1 घंटे की गैदरिंग के अंदर. दैट्स हाउ आई वॉन्ट पीपल टू थिंक कि आप एक छोटे से स्नोबॉल इफेक्ट के साथ ज़िंदगी गुजारें और आहिस्ता आहिस्ता देखिए इवेंचुअली क्या होगा. मैं कामयाब नहीं होऊंगा, बट एटलीस्ट आई डाई फाइटिंग rather than complaining. So the truth is, the society is, मिशेल फूको को अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वो यही कहता है कि सोसाइटी के जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, मीडिया, हस्पताल, स्कूल, वो डिज़ाइन ही इसलिए होते हैं कि आवाम को नीचे दबा के रखा जाए. मैं तो दबने वालों में से नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो मैं उस पढ़ाई को यूटिलाइज करूँगा सवाल उठाने के लिए. एंड आई वुड वॉन्ट पीपल टू जॉइन मी टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉइस. और हर मुआशरे में याद रखें, हमें लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है. किसी भी मुआशरे में साइलेंट मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, जो न्यूट्रल लोग होते हैं. आपने उनको अपने साथ मिलाना होता है. हमें ये लोग सड़कों पे ज़्यादा नज़र आते हैं, हमें लगता है कि ये पाकिस्तान में मेजॉरिटी है. किसी भी मुआशरे में मेजॉरिटी न्यूट्रल लोगों की होती है. तो मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रल लोग मिलें, मेरे साथ नहीं मिलना, किसी और प्रोग्रेसिव बंदे के साथ मिलें जो आवाम को एजुकेट. और मैं तो क्या कहता हूँ, मेरा बेसिक पर्पस क्या है? आई वॉन्ट सर पीपल टू बी एजुकेटेड, पीपल टू लर्न, पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स देयर फैमिली एंड लुक टूवर्ड्स कि एक जगह अगर आपको मुआशरे ने पहुँचा दिया है, प्रिविलेज दे दिया है, तो कुछ अपने मुआशरे को भी कॉन्ट्रीब्यूट करके चले जाएँ. दैट्स द वेरी ईजी वे ऑफ थिंकिंग. दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड सर टू दिस. जी मैडम. थैंक यू सो मच. आपने इतनी सारी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है, इसलिए सच बोलना मुश्किल है. ट्रू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. जो आप कह रहे थे औरत की नहीं, मर्दों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल. जी बिल्कुल मुश्किल. क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में, मेरे पास लोग थक हार कर आते हैं काउंसलिंग के लिए हर एज के, यानी 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग. जी. सिर्फ मुझे आपसे ये पूछना, आखिरी चीज़ ये बता दें कि इंसान हौसला कहाँ से लाए, जो भी इतनी रोटी कपड़ा मकान के नारे पे पीछे लगा दिए गए, जैसे आपने कहा. जी पीछे पलट के देखें तो लगता है ज़िंदगी तो कहीं कहाँ चली. अच्छा, ट्रक की बत्ती के पीछे आधी दुनिया अभी भी लगी है. पाकिस्तान में कुछ पता नहीं क्या बनेगा अगले 3 से 5 साल में, वो भी शायद आप और बेहतर बताएं कि हम कहाँ देखें क्या होगा. खैर, बात सिर्फ ये कि जो इतनी तौर से थका दिया गया है हमारी उम्मत को या कौम को, ये थके हुए लोग जो थकते ही जा रहे हैं मजीद, ये वो जज्बा हौसला कहाँ से ले चले. आपने तो वरना इंसान इतना थक जाते हैं अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अकेला कर दिया जाता है. आपने बताया उस वक्त जब इंसान स्टैंड अलोन पोजीशन पे खड़ा है, सबसे जो प्राइस पे करनी है, तो वो भी तो कोलैप्स होने लगता है. उसके लिए क्या, चले इंडिविजुअल लेवल पे हम जैसे हज़ारों लोग काम करें, लेकिन स्पिरिट हाई रखने के लिए फिर भी इस मुल्क में क्या करें, हम छोड़ के भाग भी नहीं सकते हमारी. एक छोटा सा कोट है, आई थिंक परहैप्स दैट विल आंसर योर क्वेश्चन. हेनरी फोर्ड जिसने पहली गाड़ी बनाई थी ना, उसने कहा था कि इफ आई वुड हैव आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड, दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस. कि अगर मैं लोगों से पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं हमें गाड़ी वाड़ी कहाँ दे रहे हो, हमें तेज़ घोड़े दे दो. सो मैडम, लोग हमेशा आपको पुल, किसी भी सोसाइटी में दे विल ऑलवेज पुल यू डाउन. आपके आसपास लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. बट मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई एक ना एक एंकर मौजूद है, वो इस रिजेक्शन से बाहर निकल आते हैं. एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त, मैन सर्च फॉर मीनिंग. आई डोंट नो, हैज़ एनीवन रेड इट? विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग. विक्टर फ्रैंकल वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एडोल्फ हिटलर. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उसको रखा गया, उसके सामने उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप को उसकी नज़रों के सामने मार दिया गया. बट स्टिल डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल सर्वाइव्ड. और जब वो निकला वहाँ से, ही बिकेम अ टॉप साइकोलॉजिस्ट. आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी में उसने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं लोगोथेरेपी. तो लोगोथेरेपी, वो अपने पेशेंट्स जब उसके पास आते थे साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, वो उनसे अजीब व गरीब सवाल करता था. वो कहता था कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते?
अगर आप सोचें, ये बड़ा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है कि यार तुम खुदकुशी क्यों नहीं करते। वो कहता है ये दिस क्वेश्चन यूज्ड टू वर्क लाइक अ मिरेकल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन यूज्ड टू फाइंड एटलीस्ट वन रीजन टू लिव, कि मेरा बच्चा मुझे इम्पेटस देता है या मुझे जिंदगी में कुछ पैसे कमाने, whatever XYZ might be the reason. So one answer that I want to give in this limited time during our rendezvous is find that anchor in life and stick to it. That's why I gave this talk of Ikigai कि कहीं ना कहीं वो आपको एंकर मिल जाए जो आपको even in your toughest times, when the chips are down, when you're feeling all alone, lonely, dejected, frustrated, तो वो एंकर आपको कहे कि come on, let's rise up again today and let's make it count. बहुत शुक्रिया जनाब। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया आपने अभी स्टेज पे मैं सदर साहब से PACC जनाब से महमूद रियाज से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आए, चंद कलमात साहब ने जो कुछ बताया वो बहुत और काबिल सोच है। लेकिन जिस तरह से जिक्र हुआ कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना था, लेकिन हुआ ये पाकिस्तान बनने के बाद दो कौमी नज़रिया दो निज़ाम में तब्दील हो गई। पाकिस्तान में एक निज़ाम नहीं है, तालीमी निज़ाम। अभी मैं जो PACC के मेंबर्स में जानते हैं कि मैं ड्रामा राइटर भी हूँ। अभी यहाँ PACC में थिएटर फेस्टिवल हुआ था और मेरा एक प्ले था ज़ेवर का खोट। ज़ेवर मीन तालीम और उसमें जो खोट है, बहुत सारे खोट की निशानदेही की, जिसमें एक ये निशानदेही भी थी कि हम जब किसी मुलाजमत के लिए किसी को कोई इदारा बुलाता है और इंटरव्यू लेता है तो वो ये नहीं देखता कि ये उर्दू मीडियम से पढ़ के आया है या O लेवल से पढ़ के आया है। इंटरव्यू वो एक ही तरह देता है और नतीजा यकीनन वही होता है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है वो इंटरव्यू फेल होता है और जो O लेवल से पढ़ के आता है O लेवल वो कामयाब हो जाता है। हम इस तरह से अपनी दो कौमें बना रहे हैं। तो जब तक तालीमी निज़ाम से हम वैसे जो चार और कौमें हैं वो एक कौम ही हो सकती, छोड़ी तालीम ही अगर एक हो जाए तो हम एक कौम बन सकते हैं। एक और बात कि बोलने की आज़ादी और ये सब कुछ, ये देखिए सब ये अल्फाज हैं, आमदन इसका कहीं वजूद नहीं है। कादिर जिना हॉल में एक मुकदमा चला था मोहम्मद अली शौकत अली के ऊपर, और वो किताबों में भी है और PTV के एक ड्रामा ताबीर है उसके अंदर भी ये सीन मौजूद है कि इन्होंने जज को ऐसे जवाब दे दिए थे तो जज मुस्कुराया था। तो हम अपनी किताबों में लिखते हैं कि मोहम्मद अली शौकत अली का कितना जुर्रतमंदाना हम रद्द-ए-अमल था जज के लिए, कि आज कोई इतना जुर्रतमंदाना इक़दाम किसी जज के लिए कर सकता है। फिर हमने मुख्तलिफ महकमों की तौहीन के लिए कानून बना लिए हैं। तौहीन उस महकमे की होती है, मानी जाती है, समझी जाती है, जिसकी कोई इज्जत है। तो बाय डिज़ाइन में सब कुछ हो रहा है और आवाज़ उठाना और निशानदेही करना, वो निशानदेही और आवाज़ उठाने की वहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की हम निशानदेही कर रहे हैं वो दूसरों को नज़र नहीं आ रही, सबको नज़र आ रही है। लेकिन जो अभी पिछले दिनों आवाज़ उठाने के ऊपर मंजर देखने को मिले, इसके बाद कौन जुर्रत करेगा कि वो आवाज़ उठाए। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम तालीमी निज़ाम को एक कर दें, कौम बन जाएगी। बहुत शुक्रिया।